Hello students. This is going to be our second chapter for applied mechanics. So I am Pankaj Rana from Civil Engineering Department of Chandigarh Polytechnic College. As we have already covered the very first chapter, so in this chapter we are going to see about forces and law of forces, and we will come to understand the meaning of force and what are the different types of forces are there. So this is going to be not a very much I'm not going to that much in deep on this. I will just cover the few major topic and important topics. So not wasting too much time, let's start. So here again, this is the book of Applied Mechanics by Dr. M. L. Laveri, which is strictly based upon the syllabus prescribed by the Punjab State Board of Technical Education. As I already told you, the name of the chapter is laws of forces. So सबसे पहले हम ये जानते हैं कि force क्या होती है. What is force? क्या है force, कोई बता सकता है? Let's take an example. This is an object. इस ऑब्जेक्ट को कोई चीज क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है या धकेल रही है. मतलब कोई एक इस पे पावर लग रही है, किसी तरह की धक्का लग रहा है, पुश लग रहा है इसको या पुल लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे. ठीक है. किसी भी तरह की एक्सटर्नल किसी चीज को, किसी बॉडी को जब एक्सटर्नल कोई भी एक कोई चीज धकेलती है किसी चीज को या खींचती है अपनी तरफ, वो क्या होगी, हमारी फोर्स. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. दिस चैप्टर डील्स विद डेफिनेशन ऑफ फोर्स, types of force, its effects and characteristics along with various laws of forces. So in this chapter, we are basically going to discuss about what is force and what are the various types of force and what are the characteristics of force along with the different different laws of force, triangle law of forces. Okay, so one by one we will discuss everything. So as per Newton law, every body continue in its state of rest or its uniform motion in a straight line until or unless it is compelled to change that state by external force acting on it. It means every body continue into its state or rest or uniform position. Let's take an example of this body again. ये कोई बॉडी है, ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ये क्या है, अपनी यूनिफॉर्मली एक जगह पे है. अब क्या होगा, जब तक इसे कोई बाहरी फोर्स, ये मान लिया कोई फोर्स है, एफ फोर्स है, जब तक ये कोई बाहरी फोर्स इसको नहीं लगती है तब तक ये अपनी पोजीशन से चेंज नहीं करेगी. अब क्या होगा, अभी तक चेंज नहीं कर रहा है. देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाई यहाँ से, तो ये क्या किया, मूव किया. मतलब पहले इसकी पोजीशन ये थी, फोर्स लगाने के बाद ये पोजीशन यहाँ पे आ गई. सेम वही चीज़ अभी ये चीज़ है यहाँ पे, अगर इसको मैं इनवर्ट यहाँ से अंदर की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी. तो यही चीज़ हुआ कि बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी, यूनिफॉर्म पोजीशन में रहेगी, जब तक कि कोई इसको इसकी पोजीशन को चेंज ना करे, कोई कौन, एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इस पर कोई एक्ट ना करे. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट चलते हैं हम. Here is the another beautiful example. You can see this is push and this is pull. So definition is a push or pull cause speeding up, slowing down, changing direction. So in this picture you can clearly see a person is trying to push this object. This is a grass cutting machine, you can see. And in the another one you can see a guy is pulling this cart in which the books are placed. So you can see the effect of push and pull here. So discuss with another person at your table about when you should we use the force to do some type work. Okay, so जैसा कि मैंने आपको पुल और पुश के बारे में बताया, पुल करना, ये कोई चीज़ है इसको मैं पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ, मतलब ये पुल फोर्स होगी, और ये किसी चीज़ को मैं धकेल रहा हूँ अपने से, दैट इज अ पुश. ओके, ये भी एक टाइप है हमारा इसका फोर्स का. अब यहाँ पे हमने डिफरेंट एसआई सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. ये एसआई सिस्टम क्या रहता है. सो एसआई सिस्टम क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. एसआई सिस्टम इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको कि इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है. एसआई सिस्टम जो है उसमें 7 बेसिक यूनिट्स आते हैं हमारे, 7 बेसिक डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं. दैट आई विल आल्सो शेयर विद यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बता ही दूँ क्या चीज़ होता है. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या रहते हैं हमारे, न्यूटन है. सो आगे में चल के आपको न्यूटन के और डिटेलिंग में बताऊंगा. एमकेएस में अगर हम बात करें तो केजी जाता है, केजीएफ आ गया, केजी बेट आ गई, ये सब सारे के सारे उसके यूनिट रहेंगे. ठीक है. 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स कौन कौन से हमारे पास. लेंथ, जिसको कि हम यूनिट इसका रहा है मीटर, मास किलोग्राम में आ गया, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन मोल. So these are the abbreviations for meter, m, kilogram, kg.
as second. So by using this, these are the your base unit actually. By using these base unit, you can convert or you can derive other units. Okay, base unit and derived units, you can derive units from all these quantities or all these units. Okay, let's take an example here. I'm taking the example of this length. It is in meter. If I have a area, then I have to find out the derived unit of that. So what will be the derived unit? Meter square. So my meter multiply by meter, because area क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, किसी दो साइड का होता है ना, एड दैट इज वाई यहाँ पे क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे आपका जो यहाँ पे mm भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है. ओके, ये सिंगल यूनिट है ना, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता. ये जो है ये क्वांटिटी, ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. पर जो ड्राइव्ड यूनिट है वो डिपेंडेंट रहते हैं हमारे. जैसे एरिया जो है ड्राइव्ड यूनिट, उसका अगर देखना हो तो डिपेंडेंट रहेगा किस पे, हमारे लेंथ पे वो डिपेंडेंट रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज characteristics of a force. So these are some of the important characteristics of force. The very first is your magnitude. It means a quantity of force, that is its size. Example 100 Newton or 200 Newton. सिंपल सी बात है, इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ धकेल रही है या फिर इस ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ अपनी ओर खींच रही है, उसको वो जो फोर्स लग रही है वो कितना उसकी पावर है, उसकी मतलब उसकी कैपेसिटी कितना है, कितनी तेजी से वो फोर्स लग रही है. ओके, जैसे लेट्स टेक एन, अगर आपकी मैं बात करूँगा, आपसे कहूँगा कि आपका वेट कितना है, 50 kg, 70 kg, 90 kg. सेम अगेन यहाँ पे अगर ये फोर्स लग रही है तो इसकी इसकी तीव्रता कितनी है, इसकी मतलब कितनी तेजी से है आ रही है. तो ये मैग्नीट्यूड को उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड. 100 न्यूटन हो गया, मान लो 200 न्यूटन हो गया. आई होप ये क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. इट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच इट एक्ट. कि फोर्स जो लग रही है किसी ऑब्जेक्ट, वो किस डायरेक्शन के अलोंग लग रही है. मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या फोर्स अपवर्ड फोर्स लग रही है या मेरी कोई इंक्लाइंड फोर्स लग रही है किसी एंगल पे, या फिर मेरा कोई सीधा एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है. लाइन ऑफ एक्शन को हमने ये शो करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं इसके लाइन ऑफ एक्शन को. नेक्स्ट इज सेंस. सो एन एरो इज मार्क्ड फॉर द पर्पस व्हिच शोज दैट वेदर द फोर्स इज पुश और पुल. इसमें अब एक और चीज़ है, यहाँ पे हम एरो शो करेंगे, वो एरो हमें बताएगा. अब मान लिया आपके पास कोई बॉडी है, मैंने कोई डायग्राम बना दी सिंपल, उस पर मैंने यहाँ पे फोर्स शो कर दी. सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स शो कर दी विदाउट एनी एरोज. सो कैन यू टेल मी दैट कि मतलब उसमें किस तरह की फोर्स लग रही है, वेदर इट इज अ पुश फोर्स और पुल फोर्स. नो, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू to understand which type of force acting on this object. Okay, so for this मैंने क्या किया, वहाँ पे एरोज मार्क कर दिए. इफ ये इनवर्ड एरो लगा रहा हूँ मैं, इधर इनवर्ड एरो लगाया मैंने. अब इसको मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे ड्रॉ करके. ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इस पे इस तरह से कोई अगर एरो में शो कर रहा हूँ, ये क्या जता रहा है, क्या दिखा रहा है, ये इनवर्ड फोर्स है. मतलब इसको क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को ये धकेल रही है इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ धकेल रही है. वहीं पे अगर ये एरो इस तरफ हो, इस तरफ, तो क्या होगा, ये आउटवर्ड फोर्स है. मतलब कि अपनी तरफ, वही टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, सेम एज इट इज. ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने क्या किया, बाहर की तरफ खींचा है. तो मतलब कौन सी फोर्स लगी है उसको, पुश क्या होगा, मतलब धकेलना. तो ये क्या हो गया, पुल हो गया. ठीक है. तो इस तरह से आपकी ये डिफरेंट सेंस के थ्रू हम वो चीज पता कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट मीन द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स एक्ट. हियर इज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, here is an object and here we have the force. This is the force. ऐसी फोर्स है या फिर ऐसे फोर्स है. The point through which the force act, वो पॉइंट जिससे आपकी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, वो पॉइंट जहाँ पे आपकी फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है. दिस जस्ट टेकन, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ इनको. मैग्नीट्यूड क्या है, इट मीन्स quantity of force, that is its size. Okay, size के बारे में clear हो गया. Next we have direction. It means line of action, that is direction of the line along with which it acts. Again, since an arrow is marked for the purpose which shows that whether the force is push or pull. उस arrow से हमें clear हो जाएगा कि force जो लग रही है वो push force है या फिर
पुल फोर्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट मीन्स द पॉइंट थ्रू विच द फोर्स है, वही पॉइंट को बता देगा जिसके होते हुए वो फोर्स जो है वो लग रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिफरेंट, हमारा डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम। डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम हमारा कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर आता है। ये मतलब फोर्सेस के भी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो व्हेन ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम और सिस्टम हैज मोर देन वन फोर्स एक्टिंग, इट इज नोन एज फोर्स सिस्टम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर इज द बॉडी, more than one force acting on it. एक से ज्यादा फोर्सें लग रही हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा फोर्स लग रही है ऑन अ बॉडी। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक से ज्यादा फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे। सो दैट ओके, सो दैट्स दैट तो उसका जो मतलब हमारा सिस्टम जो एक से ज्यादा फोर्स जब एक्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स सिस्टम कहते हैं, या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। Then again force system is again divided into, here you can see in the flow chart, coplanar forces and non-coplanar forces. Don't worry, मैं आपको ये भी बताऊंगा coplanar forces क्या होती है और non-coplanar forces क्या होती हैं। Again अगर मैं coplanar की बात करूँ, then collinear, parallel, concurrent, non-concurrent डिवाइड किया जाता है। Then non-coplanar में भी हमारा parallel force आ गया, concurrent force आ गया, non-concurrent forces आ गया। So these are the different force system forces। for the important जो दो हमारे मेजरली जो important है हमारे लिए, that is coplanar force and second one is non-coplanar force। आई होप क्लियर होगा आपको, नहीं है तो एक बार फिर से इसको मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। हियर आई हैव अ बॉडी, इस पे क्या हो रहा है हमारा, ये डिफरेंट, ये एक से ज्यादा फोर्सेस क्या हो रही हैं, लग रही हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। सो इस पूरे के पूरे हम किस सिस्टम को क्या कहेंगे, फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फोर्स सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम के बारे में और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम के बारे में। डोंट वरी, जिसको कोई भी दिक्कत आ रही है नोट डाउन कर लीजिए अपना, उसको हम डिटेल में बाद में ब्रीफली उसको कर लेंगे। ओके, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर? फर्स्ट इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। डायग्राम है वो, डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए सेट ऑफ फोर्सेस लाइज इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सिंपल सी बात है, ये कोई बॉडी है, जब इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब कि फोर्स का जो इफेक्ट है वो एक ही लाइन पे आपके पड़ रहा है। ठीक है, एक ही लाइन पे पड़ रहा है, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन है उसका। सो उस तरह को हम फोर्सेस को क्या कहेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। क्या कहेंगे हम उसको, हम कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। The line of action lies, when the line of action of a set of forces lies in a single plane is called coplanar forces system। and non coplanar क्या हो जाएगा, when the line of action of all the forces do not lie in one plane is called non coplanar forces। यहाँ पे देखिए P1, P2, P3 एक ही हमारे एक्सिस पे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन इनका, लेकिन यहाँ पे जब मैं दूसरा डायग्राम देखता हूँ, यहाँ पे क्या है, P फोर्स कहीं पे लग रही है, Q फोर्स कहीं पे लग रही है, S फोर्स कहीं पे लग रही है, तो सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो क्या हुआ, जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा, सो दैट फोर्स सिस्टम इज नोन एज नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। एंड जब जहाँ पे एक ही मेरा सिस्टम होगा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो वहाँ पे जो फोर्स सिस्टम लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ इसको अगेन। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एग्जाम्पल। ये डायग्राम आ गया, इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं हम। ये डायग्राम आ गया मेरा, इस पे क्या हो रहा है, ये एक, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ये एक लाइन आ गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्सेस इधर लग रही है, ये फोर्स लग रही है, ठीक है। क्या लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स, ये जो फोर्स मेरा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो इस फोर्स में देखिए, इस फोर्स में आपको क्या है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, P1, P2, P3, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है मेरा, ये देखिए क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, P फोर्स कहीं पे है, X फोर्स कहीं पे है, S फोर्स कहीं पे है, Q फोर्स कहीं पे है, तो मेरा
नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, triangular forces, one of the important topic from this chapter and very important from आपके मतलब फ्यूचर में भी बहुत अच्छा काम आएगा ये चीज। सो इसको अच्छे से समझना है हमने, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या है। फोर्सेस का ट्रायंगल लॉ क्या है यहाँ पे ये समझना है हमने। सो पहले तो मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, साथ ही साथ फिर आपको चीज समझ आ जाएगी। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ओके, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ऑन अ बॉडी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक साथ लग रही हैं और वो रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या, एक ट्रायंगल शेप को। ओके, इन ऑर्डर, ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे आएगा, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट ऑर्डर। आई होप किसी को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, कहीं को नहीं हुआ होगा, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ करके सबको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है मेरा यहाँ पे। मैं बिफोर दैट एक हम पॉइंट ले लेते हैं पहले, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट लाइंस ले लेते हैं। इधर एक ये आ गया, इसका हम कलर चेंज कर लें, दिस एंड योर आप इसको मान लीजिए दिस। ओके, दिस अगर ऐसा है तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ पे, ये क्या है, कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे, एंगल है। ठीक है, एंगल क्यू मान लिया मैंने, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है बट वर्किंग ऑन दैट। ओके, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दो फोर्सेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली लग रही हैं। यहाँ पे मैं आपको एरोस बताता हूँ। ये देखिए, एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स जो है आपका वो लग रहा है आपका इधर इस तरफ, ये वाला। ठीक है, और एक फोर्स ये है जो कि इस तरफ लग रहा है। लेकिन क्या है, फिलहाल ये ट्रायंगल का शेप बन जाएगा अगर यहाँ से मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ इधर, इसको बी मान लिया। क्लियर है, ये पॉइंट मेरा क्या है, बी, एंड दिस पॉइंट इज ए। ओके, एंड दिस पॉइंट इज ओ। ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या आ गया, ओ आ गया, ये वाला पॉइंट। फिर ये ओ आ गया, ये आ गया ओ ए बी। अब क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इसको एक ऑर्डर में लेके आना है, कैसे, दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन आ गई, यहाँ पे मेरी फोर्स लग रही थी ये वाली, ये फोर्स लग रही है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स इधर लग रही थी ना, ये फोर्स इधर। ठीक है, और इसको मैंने एक ऑर्डर में लाने के लिए क्या किया, इस तरह से यहाँ पे ये चीज मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, वो मैंने चेंज नहीं किया है। ये देखिए, मैग्नीट्यूड इस तरफ ही था, सॉरी डायरेक्शन इस तरफ ही था, मैग्नीट्यूड हमें तो पता नहीं कितना, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन इस तरफ से इसी तरफ है, इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ था इसी तरफ है, बस मैंने इसको एक ऑर्डर में कर दिया इस तरह से। एंगल जो इसका था वही मैंने एंगल रखा है इसका, ये वाला एंगल क्या है, वही है आपका क्यू एंगल क्यू। ओके, और ये वाला मेरा यहाँ पे ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स।
अब क्या है, एक ऑर्डर में आ गई, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, दिस और दिस, इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लोजिंग साइड कौन सा रहेगा फिर, ये वाला। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। क्लोजिंग साइड ये रहेगा, यहां से मेरा क्या आ गया, ये इसका क्लोजिंग साइड आ गया। तो ये जो आएगा क्लोजिंग साइड, ये इसका ऑपोजिट होगा, इज द इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये देखिए ये आ गया ऑपोजिट ऑर्डर। इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या है, ये है मेरा यहाँ पे आर, मतलब RESULTANT, रिजल्टेंट। दिस इज माय रिजल्टेंट। ओके, एंड ये पॉइंट कुछ भी ले लो, इसको O ले लो, B A ले लो, B ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, यही डेफिनेशन ये ट्रायंगल आप कह रहा है। अब डायग्राम अब दोबारा से समझते हैं। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दो फोर्सेज एक साथ लग रही हैं ऑन ए बॉडी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये हो गया मेरा इसी एक ऑर्डर में, ये भी इस ऑर्डर में है, ये भी इस ऑर्डर में है, एंगल ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट, अब इनका रिजल्टेंट होगा, कैसे होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, उसको बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट ऑर्डर, इन द ऑपोजिट ऑर्डर। अब यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पे हम साइन रूल लगा के ये बस सब चीज़ें रिजल्टेंट वगैरह ये चीज़ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि ये भी कुछ एंगल होगा, ये भी क्या है, यहाँ पे कुछ एंगल रहेगा ना, ये वाला, ये कुछ एंगल बनेगा, उसके बाद हमारा ये कुछ एंगल बनेगा, देन वी हैव दिस एंगल ऑल्सो, अल्फा बीटा गामा, यू कैन गिव इट एनी नेम। देन जब ये निकालना है तो साइन डिवाइडेड बाय दिस एंगल, ओके, दिस अल्फा। एंड जब ये एंगल निकालना है मुझे तो जैसे ए बी है, ए बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। देन दिस, अगर मैं इसको ए बी मान रहा हूँ, इसको ओ बी मान रहा हूँ, तो ये ए बी डिवाइडेड बाय दिस साइन बीटा। इस तरह से करके मैं सारा का सारा इसको जो मैं निकाल सकता हूँ। आई होप ये बेसिक आपको थोड़ा क्लियर होगा ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस के बारे में, और डिटेलिंग में हम इसमें जाएंगे। ओके, चलिए लेटर ऑन वी विल गो ऑन विद द मोर ऑन दिस दैट ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है आपके बेसिक्स में, कि आपको इसको बेसिक्स को अच्छे से कवर करना है, समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज योर फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम्स आर डायग्राम्स यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड and direction of all forces acting upon an object in a given solution situation। जिस स्टूडेंट को फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए हैं, वो फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझ सकता है उसकी वर्डिंग के थ्रू ही। फिर बता रहा हूँ, जिसको फ्री बॉडी डायग्राम तभी समझ आएगा जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छा समझ आ गया है, तभी वो क्या है, ईजिली इस चीज़ को समझ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया था क्या होता है, एंड डायरेक्शन भी मैंने बता दिया था, ठीक है, सेंस में जहाँ पे मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, ये डायग्राम बनाया है, ये ना। चलो इसको मैं और अच्छे से एलेबोरेट कर देता हूँ। ये मेरा एक बॉडी है, इस पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट फोर्स लग रही है। चलिए फोर्स को मैंने यहाँ पे, हियर कम्स द वन फोर्स, यहाँ से सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम इसको और अच्छे से यहाँ पे टेक्स्ट लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, ओके, ये वाला फोर्स। अगर ये 10 न्यूटन लग रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 10 न्यूटन लग रहा है। ये 20 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, ये 20 न्यूटन। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं यहाँ पे, ताकि दिख जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भी है दिस अगेन, लेट्स टेक इट एज ए 20 न्यूटन एज वेल।
this is 20 Newton, and this one is your, yes, good, 10 Newton. I hope you all are wondering in your mind कि ये भी 10 Newton ही होगा, and you are right. Okay. So देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब समझिए ध्यान को, ये मेरा क्या आ गया डायग्राम, दिस इज एन OBJECT object. Okay, this is an object. Free body diagram or diagram used to show the relative magnitude and direction. फ्री बॉडी डायग्राम्स को यूज कब किया जाता है, जब वो किसी बॉडी की पोजीशन या ये कह दीजिए किसी बॉडी का जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड एंड प्लस डायरेक्शन को शो कर देता है ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उस पर, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उन सारी की सारी चीज़ों को क्या करेगा, वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं, ये 20 न्यूटन का फोर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड शो कर दिया, प्लस ये डायरेक्शन भी बता दिया किस डायरेक्शन में लग रही है, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो इनवर्ड आउटवर्ड से मुझे पता लग जाएगा कि ये पुल फोर्स है या कौन सी फोर्स है। प्लस साथ में यहाँ पे ये फोर्सेस हमें एक और चीज़ बताती हैं कि ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब मान लीजिए ये एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स थी यहाँ से इस तरफ, तो ये एप्लीकेशन फोर्स आ गया मेरा, और ये रेजिस्टेंट होता है ना फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहा है अगेंस्ट द मोशन जो फोर्स लग रही है, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, और ये इसका नॉर्मल फोर्स आ गया। नॉर्मल फोर्स मतलब जब ये बॉडी किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो दैट इज योर नॉर्मल फोर्स। अब ये कितना कितना फोर्स लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, वो भी यहाँ पे इसने शो कर दिया। 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 न्यूटन। सो इस चैप्टर में हमारी डिटेलिंग इतनी ही है, और अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, सो यू ऑल कैन आस्क मी एनीथिंग on this, and you can mail me on my email ID, that is pankajc18@gmail.com. Let's take a quick review again, जितना भी अभी हमने किया है इसका। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले हमने लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा कि फोर्स है क्या, पुश एंड पुल के बारे में समझा, ठीक है, पुश एंड पुल के बारे में समझा। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने समझा कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कि उसको अनटिल और अनलेस उसको कोई कोई बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना कर जाए। गॉट इट। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा ये ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमें ये पिक्चर क्लियर फोटो है, यहाँ पे सब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं हमारे पुश एंड पुल का। यहाँ से हमें इसलिए क्लियर इफेक्ट समझ आ गया कि पुश एंड पुल का क्या इफेक्ट है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पे जाओ शॉप में, तो वहाँ पे डोर में फ्रंट में लिखा रहता है पुश एंड पुल। सो कंफ्यूज नहीं होना है, फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा पुश लिखा है तो कैसे मैंने इसको खोलना है, पुल लिखा है तो कैसे खोलना है। ये बहुत ही रेयर एक कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, आप डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एसआई सिस्टम के बारे में पढ़े। एसआई एक इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है, जिसको 7 बेसिक इसके मैंने आपको बताए। इसकी जो क्वांटिटीज हमने देखी है यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, your temperature, luminous intensity, amount of substances, and again उनके units, length we are measured in meters and kilogram for mass। like अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 kg टमाटोज चाहिए, ओके, सो उसका मैंने क्या किया, यूनिट डिफाइन कर दिया, ओके। देन टाइम इज इन सेकेंड, electric current is in ampere, temperature is in Kelvin, or you can say in degree Celsius also we sometimes calculated, luminous intensity is in candela, then we have amount of substance in mole. So these are the abbreviation for this. Meter can be written as M, kilogram can be written as kg, second can be S, ampere can be A, Kelvin can be K. These abbreviations are also important because when you are going to solve numerical problems, at that time you need these abbreviations. आपने ऐसा नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहाँ पे आप लिख दो पूरा का पूरा मीटर, नो, you don't supposed to waste time on this। तो सीधा सीधा आपने क्या लिखना है, वहाँ पे आपने नोटेशन, वहाँ पे एब्रिविएशन की फॉर्म में वहाँ पे आपने यूनिट्स को लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया, सेंस आ गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स की क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देन डायरेक्शन, इट मींस लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग व्हिच इट एक्ट। इन सेंस एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेदर इट इज अ पुश फोर्स और पुल फोर्स। एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की किस पॉइंट से हमारा वो ऑब्जेक्टिव फोर्स हमारा लग रहा है। डिफरेंट यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद फोर्स सिस्टम के बारे में, फोर्स सिस्टम क्या होता है, जब किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, दैट इज नोन एज अ फोर्स सिस्टम। देन वी हैव कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस इन दैट। सो व्हाट इज कोप्लेनर फोर्सेस? कोप्लेनर फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट में एक ही प्लेन पे जब फोर्स लग रहा है, दैट इज योर कोप्लेनर।
अब वहाँ पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है जब डिफरेंट फोर्सेज अलग अलग एंगल उस पर लग रही लाइन ऑफ एक्शन पे, तो दैट इज नोन एज योर नॉन कोप्लानर फोर्सेज। ओके, ट्रायंगुलर फोर्सेज बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। दो हमारे पास क्या रहती हैं ऑर्डर में, हमारे फोर्सेज हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं एंगल को, जब उनका जो रिजल्टेंट है वो क्लोजिंग बनता है किसके ऑपोजिट ऑर्डर में किसी ट्रायंगल का, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज एंड उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप साइन रूल लगा के। ओके, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की। लास्ट में वी डिस्कस अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट में किस किस तरह की फोर्सेज लग रही हैं, उसका मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन को हमें इजिली जो क्या है वो शो कर देता है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू सम अप दिस लेक्चर हियर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी से पिछली स्लाइड से कुछ डाउट रह गए हैं तो अभी जो मैंने रिवाइज किया उसमें क्लियर हो गए होंगे। ओके, so these are some of the references and applied mechanics book by M.L. Ohri, and you can also go with the Virendra Singh of Fundamental of Applied Mechanics, and here are the different links. So here is my email ID pankaj18@gmail.com. If you have any query and doubts on this video, then feel free to mail me on this email ID. So that's it for today. Thank you so much.